Nadia Jamil and Yusuf Bashir Qureshi will talk about their friendship, their adopted siblinghood, and actually I wanted to introduce the two of them. So Nadia is one of my best friends since school days. She was a year behind me, but she's one of the most remarkable people I've ever met. She's somebody that influenced who I became when during my growing up years, as friends do. And Nadia is somebody who has gone from being a victim to a survivor to a thriver. And that is her journey that she supports, she advocates, and she works towards for all children. And and not just for children, but for women, through her friendships, through the community that she builds around her, which is vast. And Yusuf Bashir Qureshi is part of that community. He is a luminary who has made remarkable contributions across a diverse range of creative disciplines. As the founder and curator of the Commune Artist Colony, established in a historic tobacco warehouse dating back to 1865 in Karachi, the Commune provides a nurturing platform for artists and exhibitions to thrive. Yusuf Bashir Qureshi, YBQ, is an acclaimed fashion designer, artist, photographer, and owner of his fashion brand. He's promoted art and culture within Pakistan and internationally. He's also interested in academia, where he shares his wisdom as a mentor and lecturer. So he'll be sharing all that. He's also into organic farming, and he's an animal lover. So, welcome. Ladies first. अस्सलाम वालेकुम। जो लोग दूर हैं वो थोड़े से करीब आ जाएं, हम भी थोड़े से करीब आते हैं। Take the cushions from your chairs. Grab the cushion from your chair and just come as close as you can. Lots of cushions here. Oh, sorry, bhai. Sorry. Oh my God. हाँ, अब अच्छा लग रहा है? हाँ, बदलना चाहिए ना। लोग आए, हम लोगों से मिलने आए, इतने दूर बैठे हैं, कोई किस तरह मुलाकात होगी? हाँ, अच्छा, सबसे पहले शुरू होने से पहले अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक शैमा को बुलाऊंगा। शैमा कहाँ है? आ जाओ लड़की तुम। हाँ, आजा 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 आजा। हम लोग अदब फेस्टिवल पे आज बैठे हैं। ये दो भाई बहन जो आप देख रहे हैं, इंतहाई बेअदब लोग हैं हम लोग, और अदब फेस्टिवल पे हमें सबसे सामने बिठा दिया। तो ज़रा तुम इधर आओ। ये हमारी दूसरी बहन है। ज़रा तुम सबसे पहले कुछ सुनाओ, इससे पहले कि हम कुछ करें तुमने कुछ सुनाना है। देखो शैमा, ये सेशन जो हो रहा है ये शैमा की वजह से हो रहा है। शी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इट बड़े प्यार से, बड़े दिल से, लेकिन उसकी बहुत एक अहम थैंक यू। ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक ले लो। हाँ, मैं एक ब्रेक, अजान हो रही है। अजान के दौरान मैं इनवाइट करूँगी आप सबको कि ये जो एक सफ़र है जिस पे अभी हम निकलने लगे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ जर्नी बिटवीन भाई, मी एंड ऑल ऑफ अस। अभी हमने सीखा रिसेंटली, माय डियर फ्रेंड्स सिटिंग इन द ऑडियंस एंड आई, के न्यूरॉन्स हु fire together, wire together. So this is an evening where we will all try and align आपस में with love. ये एक सफ़र है जो हमने अपने दिल से आपको पेश किया,
अपने दिमाग से इसको प्रोड्यूस किया और अपने गट और जिगर से आपको पेश कर रहे हैं. So before we start and while the azan is going on, just take a few deep breaths. Deep breaths. Because the one thing that keeps you alive, that makes you who you are, that is your becoming, is your breath. Your breath. भाई कहते हैं प्यार यार से, इश्क खुद से, खुद खुदा से. तो ये खुद सांस के बगैर क्या है? So just take a few minutes in beautiful silence to breathe. Deep breaths in, long exhalations out. Taking in life and giving life. ये हमारा खूबसूरत दरख्त है. ये हमें ऑक्सीजन दे रहा है. हम उसको अंदर अपने रुएं में बसा रहे हैं और हम उसको वापस एक तोहफ़ा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का. और ये हमारी सिनर्जी है. यूसुफ बशीर कुरैशी. यूसुफ बशीर कुरैशी मेरे बड़े भाई. मेरे ना एक बायोलॉजिकल बड़े भाई थे जो 2-2.5 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको वापस बुला लिया. मेरी हमेशा एक तलब थी भाई की. और आपस में हम लोगों को कितनी बार भाई भाई कह देते हैं. लेकिन ये जब यूसुफ भाई ने अडॉप्टेड मी and I adopted him back, this was a different kind of a relationship. He is my teacher, he is my mentor, he is my friend, he is my brother, he is my anchor, as he is to many, many people. Many people. So I'd like you all to welcome my brother. अच्छा भाई बात कर दी बहुत. हाँ, इसको मैंने कहा अपनी बहन और मैं इसको माना अपनी बहन. कहने और मानने में बहुत दफ़ा तजाद भी होता है. हम लोग हम इतनी कंडीशनिंग होगी ना जो कहते हैं क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक है और सब ठीक है. नहीं फिर तबाह हुई हुई ये ज़िंदगी. फिर अभी क्यों बोला था कि भाई अल्लाह की शुक्र सब ठीक है. तो हम लोगों को आदतें ऐसी हो गई. आज हम लोग 3 दिन पहले हम लोगों का इरादा हुआ कि हम लोग यहाँ के बैठेंगे तो क्या बात करेंगे. और दूसरा भाई और बहन जब साथ बैठे तो हम लोग लड़े भी आपस में. और अभी भी लड़ रहे थे हम लोग, पीछे बैठे लड़ रहे थे. और लेकिन पता है क्या, और इसी अदब की मैंने आज बात करनी है. हम लोग अदब सिर्फ ये समझते हैं कि शेक्सपियर पढ़ें या उर्दू पढ़ें वो अदब है. तो हमारे आप जाएं देहातों में अदब देखें. हमारे जो पुराने लोग थे वो पढ़े लिखे इतने नहीं थे लेकिन जाहिल नहीं थे, वो मुअद्दिब थे. उन ख़वातीन जो बिल्कुल गांव में रहती थीं और कुछ पता नहीं होता था लेकिन उनको ये पता होता था कि किस बूटी में शिफा लिखी है. तो हम लोग आज जिस अदब की बात करेंगे उसमें मज़ाह भी होगा, उसमें नाराज़गी भी होगी. और ये जो हमारा कल्चर है यहाँ का, हम तो सबसे पुराने सिविलाइज्ड लोग हैं ना, सबसे पुराने. पता नहीं हमें क्या हो गया. बहुत सिविलाइज थे हम. 5000 साल पहले मंजदरों में सिविलाइज थे. उस वक़्त भी लोग बर्तन बनाते थे, खूबसूरत पोशाकें पहनते थे, प्रिंटेड होती थी, पेंटेड होती थी, फैशन थे. फिर 6000 साल पहले गंधारा में, ओ माय गॉड, एक और फैशन के रंग, उनके पत्थरों पे कार्विंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनकी, उनके बर्तन. और फिर बलूचिस्तान, 15,000 साल पुराना मेहरगढ़. तो हमारी तो ये पूरी धरती इन लिहाजों से जुड़ी हुई है. हर वक्त का अलग लिहाज, हर कौम का अलग लिहाज, और फिर सबका एक लिहाज. अब आप देखें आई किस तरह मेरे घुटनों को भी हाथ लगाया, मुझे प्यार भी किया, मैंने इससे सर पे हाथ फेरा, इसको खुशबू लगाई. ये सारा लिहाज में आता है. तो हम आज डिस्क्राइब करेंगे मुख्तलिफ चीज़ें. शहमा ने पढ़ना था
मैंने पहले बोला मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने पढ़ना था। नादिया बोला मैंने तो कह दिया पढ़ना था। हम लोग इस बात पे लड़ रहे थे पीछे। मैंने कहा तुम लोग इस तरह बीच में चीज़ें करोगे तो कैसे काम होगा भाई, बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग दोनों बहन भाई पीछे लड़ रहे थे और श्यामा बेचारी, यार मैंने उनको क्या कह दिया, ये बीच में बैठी हुई थी, एक तरफ नादिया एक तरफ मैं, और मेरा मुंह उसने देखा। वैसे ही I mean, थोड़े से मेरे मुंह पे अगर थोड़ा सा भी तेवर आ जाए तो बहुत खतरनाक दिखता हूँ, खतरनाक भी नहीं खौफनाक दिखता हूँ। तो हाँ उसने बोला पता नहीं इस चचा को कहाँ छेड़ दिया मैंने इस वक्त, अब ये स्टेज पे कुछ और ना कर दे। तो मैंने स्टेज पे यही करना था, यही आके बता देना था। तो और पता है क्या, कोई इंसान की ताकत में लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, ये बहुत बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। तो जितना मर्जी बोल लूँ अगर सुनने वाले कान ना हो तो किसी को क्या पता क्या बोला। और बहुत अच्छा लिख लूँ और किसी के लिए ना हो तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें हम लोगों को जोड़ने की, हमारा लिहाज हमें जोड़ता है। तो अब नादिया तुम कुछ सुनाने लगी थी मैंने ना पहले ना कल रात का मैं थोड़ा दोहराती हूँ। तो मैं और भाई आज के प्रोग्राम के बारे में उस हवाले से हम मिलने बैठे। मैं जब यूजुअली करती हूँ, मैं अपनी गुमछड़ी बातें खुद करती हूँ, भाई अपना खुद करते हैं। अब मैं एक परफॉर्मर के वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही थी, मैं छोटी बहन का लिहाज मैंने सोचा ही नहीं। तो जब भाई ने अपना एक फॉर्मेट मुझे बताया, मैंने कहा ये तो आप मेरे डायरेक्टर तो नहीं हैं, ये क्या बात है। और हम दोनों, भाई ने कहा अरे लेकिन एक अदब है, एक स्ट्रक्चर है। मेरे में एक मैं थी कि मेरा ये मैं इस तरह करती हूँ, मेरा ये स्टाइल है। उसी वक्त मेरे ख्याल में मगरिब का वक्त था। तो मैंने उठ के अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ी और खुदा की कसम है नमाज ख़त्म होते ही मैंने भाई के घुटने छुए और मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा भाई ये पहली बार मैं अपनी मैं को बीच में ले आई और मैं ये लिहाज ही करना भूल गई कि आप मेरे बड़े हैं, मेरे उस्ताद हैं और आपका एक जो भी विज़न होगा वो हम दोनों के लिए बेहतरीन होगा। फिर मैंने माफ़ी मांगी और मैंने अपना जिप किया मुंह और फिर सुना और सीखा। और वहीं से फूलों के एक मिनट सब्र करो, फूलों के तारों से पहले सब्र करो। मैं बताऊं आजी, अना में भी एक आजी है, तो बहुत ख्याल से। सब झगड़े अना के होते हैं, सब झगड़े अना के होते हैं, लोग कब कहाँ किसी के होते हैं, क्यों लगाते हैं आरज़ुए मन उनसे जो खुद से बेवफा जुदा होते हैं। तो और इसकी भी एक अना थी और मेरी भी एक अना थी कि मैं बड़ा भाई हूँ, इसने कैसे बोला। और हम लोग दोनों बहुत ही एक तो लोग होते हैं कि आज़ाद ख्याल, हम आवारा ख्याल हैं दोनों बहन भाई ना, तो ज़रा संभालना पड़ता है। नहीं बस मेरा दिल करे मैं वहाँ सब लोगों के साथ बैठ के ना, मैं तो टप्पे भी गाऊंगी और मैं नाचूंगी भी। तो फिर हम लोग लेके आए खातून को। हाँ भाई बहन बने कब? अच्छा हाँ ये भी सवाल बनता है। नादिया तुम बताओ। पहले मैं भाई से कुछ कहना चाहती हूँ और आप लोग गवाह हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरा भैया है, सारी उम्र तेरे संग रहना है। भोले भाले जापानी गुड्डे जैसा तू, प्यारी प्यारी कागज की पुड़िया जैसा तू, आ मेरे पास आ कह जो कहना है। 1000 में लाखों करोड़ों में मेरा भैया है, सारी उम्र तेरे संग रहना है। मुझे किसी ने भी बाहर कहा आपने जो ये कैप पहनी हुई है ये कहाँ का कल्चर है, तो मैंने दिल में सोचा मैं बड़े होकर यूसुफ बशीर कुरैशी बनना चाहती हूँ। वो नहीं रिक्शे के पीछे लिखा होता मैं बड़ा होकर टोयोटा बनूंगा, यही इसने वो वहाँ से पकड़ा है। ये कल उन्होंने पहनी हुई थी। अच्छा कमिंग बैक टू लिहाज, हमारा जो हाँ मिले कैसे थे, मैं कुछ और बात करो तुम कुछ और बात कर रही हो। मिले कैसे थे तुम बताओ, ज़बात का सवाल था। ज़बात के सवाल का जवाब हम मिले कैसे।
मुझे लगता है जैसे कि हम हमारी जो रूहें हैं पहले से ही कहीं मिली हुई थी. आई फील दैट अबाउट माई डॉटर एज वेल, कि वो मेरी ही हमेशा से थी, ये नहीं कि मैंने उसको गोद लिया या कुछ लिया. तो कुछ काफ़ी साल पहले एक ड्रामा प्रोड्यूस किया भाई ने, नेसेसरी टारगेट्स, जिसमें मैं एक सुभान अल्लाह मैं इसने तबीयत खराब अल्हम्दुलिल्लाह. कर दी. ये नेसेसरी टारगेट्स एक ई वेंसलर का एक प्ले था, वन बॉस्नियन वुमन, यू नो. तो और मुझे पता नहीं था ये खातून किस तबीयत की हैं. तो जब इनको बुलाया वहाँ तो वो बहुत ही कोई एक इमोशनल सीन था, और ये रो के इसने अपने आप को भी निडाल कर दिया, बाकी सब जो बैठे थे उन्हें भी निडाल हो गए. तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई. मेन चीज़ ये नहीं होती, बहुत से लोग आप लोग रोज़ाना मिलते हैं और कुछ के साथ कुछ रह जाते हैं और कुछ चले जाते हैं. अच्छा, ये कौन लोग होते हैं जिनसे हमारी पहले हमें लगता है कभी मुलाकात तो हुई नहीं, फिर ये चाह क्यों है? तो हम तो हमेशा से थे. ये जो जिस्म का खोल, इस पे केसिंग चढ़ी, ये तो अभी जितना टाइम हुआ उतनी केसिंग चढ़ी ना. उससे पहले तो हम किसी और मिजाज में थे, किसी और माहौल में थे. लेकिन ये सारी रूहें जो एक दूसरे को मिलने को तड़प रही होती हैं, अब आप लोग सब यहाँ आए हैं, कुछ नादिया का सुन के, कुछ मेरा सुन के, कुछ जाके कहा कि भाई देखें सही बात क्या करते हैं. एक चाह थी. इसका मतलब ये कि हम लोग पहले मिले थे, वरना ये चाहत ना होती. अरबों लोग हैं दुनिया में, किसी के पास ये वक्त नहीं मिलता ना. वक्त नहीं मिलता, हमें वक्त निकालना पड़ता. तो ये वक्त कैसे आपने निकाला? आपको कैसे पता लगा यही आपका प्यार था, यही आपकी कॉलिंग थी? एंड दिस इज वेयर यू हैव टू गो, दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग. तो वक्त पे भी एक चीज़ सुनाता हूँ. ये वक्त अब कहाँ गया? और उस दिन एक बात मैंने किसी को लिख के दी थी कि जिन लोगों के पास लम्हात होते हैं उन्हें वक्त की ज़रूरत नहीं रहती. तो ये वक्त अब कहाँ गया? अजीब सी ये बात है, अजब सा ये ख्याल है, मगर जो सोचने लगूं तो एक अहम सवाल है कि वक्त ही कहाँ गया, कि उम्र सब गुजार दी और वक्त ही मिला नहीं. कहा किसी ने आ मिलो तो वक्त ही नहीं मिला, किसी का दर्द बांट लो तो वक्त ही नहीं मिला. जो चाहा कुछ लिखूं कभी तो वक्त ही नहीं मिला, आराम करना चाह जो तो वक्त ही नहीं मिला. माँ बाप को मैं वक्त दूं तो वक्त ही नहीं मिला, बच्चे कहें कि वक्त दें तो वक्त ही नहीं मिला. बेगम कहे बनो ठनो तो वक्त ही नहीं मिला. बहनें कहें कि बस करो, हमेशा ही कहती, बहनें कहें कि बस करो तो वक्त ही नहीं मिला. मेरी सेहत गिर रही थी जब मुझसे कहा ये भाई ने तब कि सारे काम छोड़ दो, किसी डॉक्टर से वक्त लो, तो वक्त ही नहीं मिला. कच्ची उम्र का दौर था, दिल ने कहा कि प्यार कर, पर वक्त ही नहीं मिला. फिर इश्क रब से हो गया तो इश्क दहर खो गया. ये चाह रब को खोज लूं मैं क्यों जहां का बोझ लूं, पक्का ये ठान ही लिया, पर वक्त ही नहीं मिला. ये माहो साल सारे अब है मांगते जवाब जब, तो क्या हुई हयात फिर, कैसे बनेगी बात फिर, कि उम्र सब गुजार दी और वक्त ही मिला नहीं. तो वक्त ये कहाँ गया कि वक्त ही नहीं मिला. तो वक्त नहीं मिलेगा, आपको निकालना पड़ेगा. और वक्त हम लोग क्यों निकालते हैं? खुद से जुड़ने के लिए. दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट कि दूसरा ही आपको बताए आप कितने प्यारे, आप कितने नालायक, आप कितने तेज, आप कितने हसीन, आप कितने बदसूरत, आप कितने बदजबान. ये दूसरा ही बताए आपको. और दूसरे में एक और खासियत है, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, मैंने कभी अपनी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखी, मैंने हमेशा इसका रिफ्लेक्शन देखी. तो दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो मुझे खुद से देख रहा है जो मैं खुद नहीं देख पा रहा. प्रॉब्लम ये होती है जब दूसरा आता है तो हमारी नज़रें उन पे पड़ जाती हैं और खुद से उठ जाती हैं. जब दूसरा आए तो खुद पे नज़रें डालें. और एक्सरसाइज एक ही बताता हूँ, रोज़ाना सुबह उठे
आईना देखें और उसमें अगर दुनिया का सबसे हसीन चेहरा नजर ना आए ना, तो ये जान लें कि वो आपकी निगाह नहीं, वो किसी और की नजर है। अब ये मेरी बहन है, ये मुझे प्यार से देखती है, मैं जैसा भी दिखूं, जितना डरावना भी दिखूं, इसको प्यार ही आता है। कभी मुझे जापानी गुड्डा कहती है, कभी कुछ। देखो हिसाब देखो, एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बारिश आदमी को उसको बोले जापानी गुड्डा। अब इस प्यार में ये एक लिहाज है और यही हमारी विरासत है, हमें यही मिला अपनी विरासत से कि अभी भी मेरे वालिद तो यहाँ नहीं, हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ और मैं तस्वीर नहीं लेने देता किसी को मैं की सिगरेट। बोले क्यों आप नहीं लेने देते? मैंने कहा मेरे वालिद फेसबुक पे हैं उनके माथे पे क्यों तेवर आए? तो ये जो छोटे छोटे लिहाज हमारे थे और वही हमारा अदब बना। अब आप नादिया आपको सुनाएगी कुछ चीज़ें जो हमारे अदब थे, क्या करते थे हम लोग, लोगों को कैसे जोड़ते थे। ये जितने कल्चर्स, ये जितने रंग, ये सारी चीज़ें बनी, ये जितने अदब थे, ये लोगों को जोड़ने के लिए बने। सॉरी मैं तुम्हें बात करता हूँ, फिर पे आ जाता हूँ अपने, मुझे एकदम काट देना जब तेरा दिल करे। इनका निज़ामुद्दीन के पास कुछ उनके मुरीद आए और उन्होंने आके बोला कि हज़रत हम लोग नापाक हो गए। हमने बोला आप लोग कैसे नापाक हुए? बोला हिंदू होली फेस्टिवल खेल रहे थे तो हमारे ऊपर रंग आ गए उनके। बोला आप पे रंग आ गए? बोला हाँ रंग आ गए। तो उन्हें खुसरो को बोला खुसरो ज़रा रंग तो लाओ। उन्हें केसरिया रंग लाए और सबको रंग दिया। तो ये हमारा लिहाज और यही हमारा दिस इज समथिंग, दिस वाज अ हेरिटेज। हम लोग जो बात करते हैं ना, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पूरी दुनिया में टैलेंट है, खुदा ने हर एक को बनाया। कोई ये नहीं कि पाकिस्तानियों को बोले ये बहुत ही अच्छी कौम है, इनको मैं बहुत स्मार्ट बनाऊंगा, ऐसा बिल्कुल कोई नहीं था। आप जाके देखें जापान में लोग कैसा आर्ट वर्क कर रहे हैं, आप जाके हॉलैंड में देखें, मर्सिडीज जर्मनी वालों ने बना दी, हम लोगों ने लोगों भी नहीं बनाया वैसा। तो हमारे पास टैलेंट की बात मत करें। हेलो भाई करंट वरंट तो नहीं लगेगा हमें? हेलो, करंट वरंट से डर लगते हैं। तो हमारे पास टैलेंट नहीं, हमारे पास लिहाज था। यही हमारी मिरास थी, यही हमारी विरासत थी। हमें पता था बड़ों का क्या अदब है और बच्चों का क्या लिहाज है, ये हमें सिखाया जाता था। और अब भी हमने यही चीज़ें खुद सीखनी है और बच्चों को, इसीलिए आप लोग यहाँ के बैठे, पुरानी यादें ताज़ा करें और एक दूसरे से जोड़ें। बहनों की बात बता रहा हूँ, कैसी थी बहनें, जिद करती थी, मान होता था भाई पे। आप यकीन करिए, मैं कल बैठी, मैं रोज़ाना टोपी पहनता हूँ। अब एक इंसान को आदत हो जाती है टोपी पहनने की, तो अब सर नंगा बाहर नहीं जा सकता। या ही कल टोपी पहन के, मैं कहा अपनी साइज़ की ले लो, दूसरी ले लो, ये मेरी है। नहीं मैं यही पहनूंगी। इतना मुझे गुस्सा आया जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन उसको जैसे ही देखा उसने टोपी पहनी, प्यार आ गया। अजीब लिहाज, ये अजीब प्यार है। तुम बताओ इस प्यार का थोड़ा सा, बहुत बोल। यकीन करें, भाई ने जो कुर्ते पहने, ये कुर्ते भाई बनाते हैं, भाई ने जो कुर्ता पहना हुआ होता है ना, जब मैं उन्हें मिलती हूँ, मुझे और कोई, वो कहते हैं मैं नया दे दूँगा, नया है। मैंने कहा जो आपने पहना हुआ है मुझे वही चाहिए, इसी वक्त चाहिए, वही चाहिए। और ये मेरी एक ज़िद होती है उनके साथ। संगत की बात है, दोस्ती की बात है, मेरे यार भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। हम पंजाबियों में ना एक रिवाज है, संगत में और दोस्ती में, ख़ास तौर पे शादियों में, हम टप्पे गाते हैं, हम टप्पे सुनाते हैं एक दूसरे को। तो मैं 2-3 टप्पे पेश करूंगी, आखिरी टप्पा जो होगा वो मेरे भाई के लिए होगा। टप्पे, अब मैं दोबारा, तुमने ये टप्पे बोला ना, पंजाबियों की इसने बात की ना, मैं बताऊं, दो सिंधी तुसी पहले बोल लो। नहीं 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 पापा जी तुसी पहले बोल लो। नहीं, मैं पहले, तुमने अब बात ऐसी की ना, पंजाबी लेके आई ना तुम बीच में, मैं तुम्हें ये सुनाने तो दे। कहानी सुनाता हूँ पंजाबियों की कहानी। दो सिंधी बाहर मिले ना आपस में, तो आपस में सिंधी में बात करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। दो बलोच मिले तो आपस में बलोची में बात करेंगे, दो पठान मिलेंगे आपस में पश्तो में बात करेंगे, बहुत खुश होंगे। दो पंजाबी आपस में मिलेंगे तो कोशिश करेंगे इंग्लिश में बात करें। ले मैं बता रहा हूँ, देखिए भाई अंग्रेजों ने हम पे उनके 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 सारे शुक्र हम पे नज़ुल हुए। दिल को तीर लगा, सच का तीर बड़ा औखा लगता है। भाई सारे चौधरी कैसे बने? ऐसे तो बने हम लोग। टोटल कॉम्प्लेक्स केस है पंजाबियों में, वाकई में ये बात सच है। तो
ਟੱਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰੀ, ਟੱਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੀ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਰਮੇ ਵੇ ਰਮੇ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਰਮੇ ਵੇ ਰਮੇ, ਪਰਾਂ ਹਟ ਵੇ ਬਾਬੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀਆ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਪਰਾਂ ਹਟ ਵੇ ਬਾਬੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀਆ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਰਮੇ ਦੇ ਰਮੇ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਰਮੇ ਦੇ ਰਮੇ, ਨਿਤ ਮਾਹੀ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਏ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ, ਨਿਤ ਮਾਹੀ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਏ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ। ਗਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਗਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੀ ਮਾਹੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਕੀ ਮਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਕੀ ਮਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟਨ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟਨ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਕੀ ਮਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਕੀ ਮਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੜਦੇ ਰਵੋ ਸਾਡਾ ਪਰਸੋਂ ਵਲੀਮਾ ਏ। ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਰ ਖੁੱਲੇ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਰ ਖੁੱਲੇ, ਪੜਦਾ ਕੋਈ ਖੜਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਬੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਕੌਣ ਹੈ? ਯੂਸਫ ਬਸ਼ੀਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਨੀ ਕੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? कौन सी वाली हैं? अच्छा अच्छा, यहाँ का हमारा दूसरा लिहाज था। हमारे यहाँ के पूरे आप इस एरिया में देखें तो सूफी आए थे। देखो ये यादों से जोड़ती हैं, और पता है क्या, याद से बड़ी कोई दुआ नहीं। याद इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। मैं लोगों को कहता हूँ अगर मुझे कोई याद ना करे ना तो मैं मर जाऊं, और अगर मैं किसी को याद ना करूं तो मैं खुद को मार लूं। तो याद एक बहुत खूबसूरत गम है। ये जो अभी हम लोग ये टप्पे सुन रहे हैं, जो चीज़ें बात कर रहे हैं, यही अदब है याद का। इसी तरह हमें चीज़ें याद आती हैं। तो अभी आप लोगों को इसी तरह, और ये जो टप्पे थे, वो कम्यूनल सॉन्ग, सब बैठ के, एक जिसका कोई सुर बराबर होता था वो बैठ जाती थी, फिर एक साथ में करने वाले, कोई मटके बजा रहे हैं। तो इसी तरह ये तो कुछ मेरी आवाज बहुत अजीब बात की, लेकिन आप देखें इनको कुत्तों वाला प्यार होता है, कुत्ते जैसा नहीं होता। कुत्ते जैसा प्यार जो है अनमोल है, ये अना के बगैर है। कुत्ता चाहे अना के बगैर। और अगर आप, फिर बुल्ले शाह ने कहा चिड़ियों के बारे में, देख बंदिया अब तो बारिश हो, दो मंजिलों का हो गया, जिसने बैठे बैठे, जिसने सुनने सुने, लेकिन भाई को बीमार ना। तो वेग बंदिया आसमाना दे उड़ते पंछी, वेग बंदिया आसमाना दे उड़ते पंछी, वेग की साइकिल कर दे नाव कर दे रिस जखीरा,
कदे किसी के उड़ते पंछी भूखे मरते देखे बंदे खाते बंदे बात है क्या आपने परिंदे दाना खाते हैं आनंद हो जाते हैं और एक कतरा पानी का परिपोष के देखे तो आसमान पे आके हम लोगों ने हमारा अगर हमसे चला गया तो हम अलग किससे सीखे उससे सीखे तो हमें सिखा गए आते नहीं चिड़िया रह गए उनके बुंदे रह गए हम लोग उससे सीखे और बैग सारी हो इसलिए आओ बेचा